اسلامی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس 4 اور 5 مئی کو گیمبے کے شہر بنجول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر خارجہ 2 مئی کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور وزیر خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاک برطانیہ علاقائی استحکام پر کانفرنس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز کا خطاب۔ نامزد برطانوی چیف آف جنرل سٹاف رونالڈ ولکر کی بھی شرکت۔ کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان فلیگ شپ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف اور نامزد چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ پیشہ ورانہ امور اور 2 طرفہ دفاعی تعلقات کو فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد مزدوروں کی قربانیوں اور حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک بھر میں ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد۔ کسی بھی ملک کی معیشت سمیت زندگی کے ہر شعبے میں مزدور کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا دن ہمیں دنیا بھر میں قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شرکاء کا اظہار خیال۔ محنت کش ملکی ترقی کی بنیاد اور معیشت کی بنیادی اکائی ہے۔ آج ہم ان تمام محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ملک کی معیشت اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ معاشی استحکام کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ نے ٹیکس قوانین میں ترمیم کا بل ملکی مفاد میں پاس کیا ہے۔ اس قانون کے تحت وزیر اعظم نے اپنے تمام اختیارات چھوڑتے ہوئے کمشنر ان لینڈ ریونیو، جوڈیشل اور اکاؤنٹنگ ممبرز کی تعیناتی اب میرٹ کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ممبران کی تعیناتی ایک آزاد سلیکشن کمیٹی کرے گی تاکہ میرٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا۔ 5,06,000 سے زائد دہندگان کی نشاندہی۔ انکم ٹیکس گوشوارے فائنل نہ کرنے والوں کے موبائل فون کنیکشن کی بندش کے لیے نشاندہی کر لی گئی۔ PTA نے 15 مئی تک رپورٹ طلب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے کمی۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 42 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 سے فی لیٹر، پیٹرول کی نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 231 روپے 96 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں میں کمی اطلاق ہو گیا۔ تونسا کی نواحی جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 7 اہلکار زخمی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ زخمی اہلکاروں کو THQ اسپتال تونسا شریف منتقل کر دیا گیا۔ شدید زخمی اہلکاروں کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اعلیٰ سطح مذاکرات اور دہشت گردی کے خلاف مالی اعانت سے متعلق پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جرمانہ عائد کر دیا۔ سابق صدر توہین عدالت کے بھی مرتکب قرار پائے۔ عدالت کا ایک آرڈر کی خلاف ورزی پر جیل بھیجنے کی وارننگ دیتے ہوئے $9,000 جرمانہ عائد کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گواہوں، جیوری اور دیگر معاملے پر بولنے سے متعلق پابندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ کی تاریخ میں ٹرمپ پہلے سابق صدر ہیں جنہیں مجرمانہ الزامات اور جرم ثابت ہونے پر کسی مقدمے کا سامنا ہے۔
सानिया 9 मई को एक साल मुकम्मल होने के करीब, मगर जख्म आज भी ताज़ा। गुज़िश्ता साल 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सानिया में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शहदा की यादगारों की बेहुरमती फसाद का सबब है। शहदा के हम पर कर्ज है और उनके बच्चों के साथ हम ये सलूक करेंगे। सानिया 9 मई के हवाले से समाजी शख्सियात का इजहार ख्याल। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। सिहूनी फौज का जनूबी शहर रफा पर एक मकान पर फजाई हमला, 2 बच्चे शहीद। गजा शहर पर भी रात भर बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। खान यूनस के नवाही इलाके में मलबे से 9 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयां, 3 फलस्तीनी गिरफ्तार। कनाडा में खालिसा तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। तहरीक खालिस्तान की जोर पकड़ने पर मोदी सरकार शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की सिख बरादरी की तकरीबात में शिरकत से मोदी सरकार तिलमिला उठी। कैनेडियन सफ़ीर को फौरी तौर पर जवाब तलबी के लिए बुला लिया। कैनेडियन सफ़ीर की जवाब तलबी दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने की जानिब इशारा। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, अफगान अवाम को शदीद जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी इस्तेहसाल का सामना। तालिबान दौर में साबिक फोर्सेस के 800 अहलकार कत्ल, खवातीन, सिविल सोसाइटी और मीडिया पर सख्त तरीन पाबंदियां, सख्त सजाओं का नफाज। UNHCR की रिपोर्ट। मरी के इलाके अलियोट में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों के लैंडस्लाइडिंग और चट्टान सर्क करने के वाक़े पेश आए। मरी कोहाला रोड को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि रोड पर मुहलिक चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी। मुकम्मल सड़क की बहाली और मुहलिक चट्टान को हटाने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेस्क्यू जराए। मैड्रिड ओपन, स्पेन के राफेल नडाल का प्री क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। जमहूरिया चेक के जेरी लहीका ने स्ट्रेट सेट्स में हराया। कनाडा के फेलिक्स इलियासम की नॉर्वे के कैस्पर रूड भी हैरानकुन शिकस्त दी। स्पेन के कार्लोस अल्काराज, इटली के जानिक सिनर और रूस के डैनियल मेदवेदेव, आंद्रे रुबेलेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मैड्रिड ओपन खवातीन सिंगल्स आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा श्वेटिंग ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की मेडिसन किन्स की भी लास्ट 4 में रसाई। क्वार्टर फाइनल में श्वेटिंग ने ब्राजील की बेट्रिस अदमाया, जबकि किन्स ने ट्यूनिस की अनस जाबिर को हरा दिया। और यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल मरहले का आगाज। बायरन म्यूनिख और रियल मैड्रिड के दरमियान पहली लीग 2-2 गोल से बराबर रही। मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल वेनियस जूनियर ने किए। म्यूनिख के लिए लेराय साने और हैरी केन ने एक गोल किया। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में जर्मन क्लब डोर्टमंड और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन मध्य मुकाबिल होंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सोनिया अदनान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्लामी ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास 4 और 5 मई को गैम्बिया के शहर बंजोल में होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार पाकिस्तानी वक्त की क़यादत करेंगे। वजीर खारजा इसाक डार 2 और 3 मई के दौरान सरबराही इजलास से कबल वज़ीर खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा इजलास में एजेंडे और नताइज के दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जाएगी। OIC सरबराही इजलास में रहनुमा गजा की संगीन सूरत हाल पर बात और मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ पेश करेंगे। सरबराही इजलास में नायब वज़ीर आज़म गजा में जारी नस्लकुशी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत, उम्मत की यकजहती और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और उम्मत मुसलमा को दरपेश दीगर असली आलमी चैलेंजेस का इज्तिमाई हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सरबराही इजलास में शरीक रहनुमाओं और वज़ीर खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 6वीं पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। यूके के नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंडो क्रोकर भी सेशन में शिरकत थी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम दिफाई और सिक्योरिटी डायलॉग है जो बारी बारी पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुक्काम, दानिश्वर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बरतानिया का 30 रुकनी वक्त 29 अप्रैल से 3 मई 2024 तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसकी क़यादत स्टैंडिंग ज्वाइंट फोर्स कमांडर मेजर जनरल टॉम बैटमैन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों मुल्कों के वफूद कौमी सलामती और आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। इस साल इलाकाई मसाइल पर बातचीत का दायरा वसी कर दिया गया है और दोनों मुल्कों के दिफाई हुक्काम भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर रोलैंड वार्ड से अलग अलग मुलाकात की और पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। और अब कुछ बात आज के दिन के हवाले से। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों का ये आलमी दिन शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। दिन का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल करने के लिए आवाज़ उठाना और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। यौम मजदूर की मुनासबत से मुल्क भर में सियासी और समाजी तंजीमों के ज़रिए तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं और सेमिनार्स का इन्नेकाद किया जा रहा है। चिन्यूट में यौम मई के मौके पर मजदूर तंजीम की जानिब से शिकागो के अजीम मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती के लिए रैली का इन्नेकाद किया गया। हैदराबाद, सादिकाबाद, सोहबतपुर, टंडो मोहम्मद खान, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। इस मौके पर शुरका का कहना था कि जिंदगी के हर शोबे में मजदूर के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौमी तरक्की और खुशहाली में मेहनत कश तबके का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। मुकर्रीन का कहना था कि आज का दिन हमें मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़ करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने मिलकर ऐसे पाकिस्तान की तामीर करनी है जहां हर मेहनत कश की कदर हो और उन्हें यकसां तरक्की के मौके मुयस्सर हों। यौम मजदूर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने मुल्क के तमाम मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पायदार इक्तिसादी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मईशत को बहाली की राह पर गामजन करने के लिए हमें मुस्तकिल मजाजी से भरपूर मेहनत करना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर के एन मुताबिक हम पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात और घरेलू मुलाज़मों पर मामूर अफराद के लिए कानून साजी को बैनुल अक़वामी मेयार के साथ हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म हैं और मुख्तलिफ शोबों में पेशा वाराना खिदमात अंजाम देने वाले मेहनत कशों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजदूर के वकार को बरकरार रखने के आज़म का अयादा करते हुए कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अंत तक कोशिश करने वाले मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दिन मजदूरों के हुकूक, उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और काम के लिए महफूज माहौल के लिए कोशिशें करने की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में मजदूर और मेहनत कश तबके को महंगाई की ज़रूरियात ज़िंदगी की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात जैसे चैलेंजेस का सामना है। मेहनत कश तबके के हालात को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब उजरत, काम के लिए महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात और मजदूरों के बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करने, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियों के नफाज और अमल दरामद में रियासत का अहम किरदार है। आज हम दिल के गहराइयों से मुल्क की तरक्की में काबिल सत्ताइश किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। आसीन माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। ज़ेर इल्तवा टैक्स मामलात को हल करना तरजीह है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारन ने कहा कि पार्लियामेंट ने टैक्स कानून में तरमीम का बिल मुल्की मुफाद में पास किया है। उन्होंने कहा कि 2700 अरब के महसूलात का मामला अदालतों में है। इस कानून के तहत वज़ीर आज़म ने अपने तमाम इख्तियारात छोड़ते हुए कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, जुडिशल और अकाउंटिंग मेंबर्स की तैनाती अप मेरिट के जरिए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन मेंबरान की तैनाती एक आज़ाद सिलेक्शन कमेटी करेगी ताकि मेरिट को बरकरार रखा जा सके। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कराची का दौरा किया। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर गुलाम अब्बास ने विफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड पहुंचने पर इस्तकबाल किया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने इदारे की पेशा वराना कारकर्दगी, जवानों के बुलंद हौसले की कोशिशों, ख़ुसूसन इंसदाद मनशियात के हवाले से किए गए इक़दाम और काविशों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ज़मीन और समंदर में बैक वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली वाहिद फोर्स है, जिसका न सिर्फ ज़माना अमन बल्कि किसी भी मुश्किल और जंगी सूरत हाल में अहम किरदार है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद और दरकार वसाइल की फ़राहमी की यकीन दहानी कराते हुए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के पेशा वराना उमूर समेत इंसदाद मनशियात और स्मगलिंग के लिए किए गए इक़दाम और पकड़ी गई मनशियात, शराब और दीगर ममनुआ अशिया की तफसीलात के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान को सियासी और अवामी अमूर के बारे में वज़ीर आज़म का मशीर मुकर्रर किया गया है। उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इस तैनाती की मंजूरी दी है। आगे बढ़ती हूँ, आपको बताएं कि FBI ने 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर ली गई है। ऐसे अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। FBI इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के मुताबिक ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। FBI ने बंद कनेक्शंस की PTA से 15 मई तक की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 13वीं जॉइंट कॉरपोरेशन कमेटी का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा होने वाले दौरा चीन और 13वीं JCC की तैयारी का तफसीलन जायज़ा लिया गया। CPEC के हवाले से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलात, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजारती आबी वसाइल के मंसूबों का तफसीलन जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म का मुतवक्किल दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो चीन की आला क़यादत की दावत पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी अफराद को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की सदारत में यूरिया खाद की कीमतों से मुतालिक जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर ने फर्टिलाइजर कंपनियों की जानिब से पेश करदा जवाब को मुस्तरद करते हुए कहा कि यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में यूरिया खाद की पैदावारी लागत में कोई इजाफा नहीं हुआ। इजलास को बताया गया कि फर्टिलाइजर कंपनियों ने यूरिया खाद की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद का फैसला हो चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद दरामद की जाएगी। नाज़रीन, सान है 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने के करीब, मगर जख्म आज भी ताज़ा। गुज़िश्ता साल 9 मई को शहादा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सानहे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती फसाद का सबब है। मुल्की समाजी शख्सियात ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि शोहदा का हम पर कर्ज है और हम उनके बच्चों के साथ ये सलूक करेंगे। गुज़िश्ता साल 9 मई को जिस तरह से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और इसमें मुल्लविस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। शोहदा ने अपनी जानें सरजमीन पाकिस्तान के दिफा में कुर्बान की हैं। जो हम पर शोहदा का एहसान है। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती, वो तारीख के सफ़ात से मिट जाती हैं। शोहदा के बच्चे हमारे लिए यतीम हुए। हमारा फ़र्ज है कि हम शोहदा की कुर्बानियों को याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह का फरमान है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि ये शोहदा जो हैं ये हमेशा ज़िंदा रहते हैं, इन्हें मुर्दा न कहो। और फरमान नबी है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अपने साथियों का या अपने मोहसिनीन का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का शुक्रगुजार कभी नहीं हो सकता। हमारे शोहदाए वतन होने के साथ साथ शोहदाए दीन भी हैं। उनका एहतराम पूरी कौम पर लाजिम है। उनकी निशानियों को मिटाना, उनको नुकसान पहुंचाना, ये वो काम हैं जो कि फसाद का सबब है। हमें चाहिए कि हम अपने शोहदा को इज़्ज़त दें, उनको एहतराम दें, उनको खराज अक़ीदत पेश करें। ये वाक़या ऐसा है जिससे पूरी कौम गमगीन है, बल्कि हकीकत ये है कि पूरी इंसानियत इससे मुतासर हुई है। हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और इनको करार वाक़ई सज़ा दें, कि ताकि आइंदा किसी को इस तरह का वाक़या करने का या इस तरह का मौका न मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। गुज़िश्ता साल 9 मई को जो अफसोसनाक सानिया हुआ,
اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی میں ملوث جو بھی شرپسند عناصر ہیں، یہ ہماری درخواست ہے کہ ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے اور وہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ اپنے شہداء کو بھلا دیتی ہیں، تاریخ ان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ یہ جو شہداء ہیں ان کا ہم پر قرض ہے، یاد رکھیے، اور ان کے بچے ہمارے لیے یتیم ہوئے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ہم یہ کچھ کریں گے جو کہ ہم نے کیا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا ہم پر ایک بہت بڑا قرض ہے جو ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ پاکستان زندہ باد۔ کچھ بات غزہ کی صورتحال کی۔ غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردی بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوج کے رفح اور غزہ شہر پر تازہ بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ رفح میں ایک مکان پر ہونے والے فضائی حملے میں 2 بچے شہید ہو گئے۔ غزہ شہر پر بھی رات بھر بمباری ہوتی رہی جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، تاہم ان کی صحیح تعداد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ خان یونس کے نواحی علاقے میں فلسطینی ہلال احمر کے رضاکاروں نے ملبے سے 9 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری نسل کشی کی کارروائیوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 34,535 ہو گئی، جبکہ 77,704 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی انتہا پسندانہ حکمت عملی کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے کے باوجود رفح پر ضرور حملہ کریں گے۔ اقوام متحدہ اور انسانی امداد کے ادارے بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ رفح پر حملہ کر لاکھوں بے گھر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیلی حملوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والے مظاہرے امریکہ کی مختلف جامعات تک پھیل گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 11 دنوں کے دوران پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 900 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے غزہ جنگ کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل میں شدت آنے کے ساتھ ہی اسرائیل کی فوجی حمایت پر جرمنی کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے دونوں رہنماؤں سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق بات کی۔ امریکی صدر نے مصر اور قطر کی جانب سے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے جاری مذاکرات میں معاونت کو سراہا۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق فریقین کو تجویز پیش کی گئی ہے۔ یوکرین کے جنوب مغربی ساحلی شہر اڈیسا پر روس نے ایک اور حملہ کیا اور حملے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا۔ اڈیسا کے گورنر نے روس کی جانب سے حملے کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز بھی روس کے حملے میں 5 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گیگ آرڈر کی خلاف ورزی پر جیل بھیجنے کی وارننگ دیتے ہوئے $9,000 جرمانہ عائد کیا ہے۔ نیو یارک کی عدالت نے سابق صدر کو توہین عدالت کا مرتکب بھی قرار دیا ہے۔ گیگ آرڈر سے مراد ایسا عدالتی حکم ہے جس پر جج کیس کے متعلقہ فریقوں کو عوامی سطح پر ججز، گواہوں یا دیگر شخصیات پر تنقید سے روکتا ہے۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے جج نے قرار دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گواہوں، جیوری اور دیگر معاملوں پر بولنے سے متعلق پابندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس حوالے سے سابق صدر نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جج نے آزادی اظہار سے متعلق میرا آئینی حق چھین لیا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ UNCHR کے مطابق طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان زمانہ قدیم میں داخل ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے باعث افغانستان کی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ 29 اپریل 2024 کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے افغانستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے افغان عوام کو شدید جسمانی، ذہنی اور جنسی استحصال کا سامنا ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جن میں ماورا عدالت قتل، انتقامی قتل، تشدد، ذلت آمیز سلوک، جبری گمشدگی، منمانی گرفتاریاں اور نظر بندی سیر فہرست ہیں۔ افغانستان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے سابق اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت 800 اہلکاروں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ طالبان نے سابق سرکاری اہلکاروں سے لے کر صحافیوں، سول سوسائٹی کے کارکنوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور اقلیتی برادریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا ہے۔ جنوری 2022 سے جولائی 2023 کے درمیان اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 1600 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے ہیں، جبکہ نومبر 2022 اور اپریل 2023 کے درمیان افغانستان میں اقوام متحدہ نے جسمانی سزاؤں کے 43 سے زائد واقعات رپورٹ کیے ہیں۔
तालिबान रिजीम में 58 खवातीन और 274 मर्द बशमूल बच्चों को मुख्तलिफ जराइम की मद में कोड़े मारे गए हैं। तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद से अफगान मीडिया को बेइंतहा पाबंदी और मुश्किलात का भी सामना है। अगस्त 2021 अब तक मीडिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के 245 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें हिरासत और जिस्मानी तशद्दुद के 130 मुकदमात और 61 सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां शामिल हैं। तालिबान ने तमाम कवानीन, कवायद और पॉलिसियों को मनसूख कर दिया, जिसके बायस अफगानिस्तान में इंतजामी और अदालती ढांचा मस्ख हो चुका है। अफगान तालिबान के 2021 में काबिज होने के बाद से जहां मुल्क को दीगर चैलेंजेस का सामना है, वहां मुल्क में मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। तालिबान रिजीम के बाद अफगानिस्तान में अवाम भूख और अफलास के साथ साथ कई किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खसरा वबा पर जहां पूरी दुनिया काबू पा चुकी है, वहां तालिबान के जेर कंट्रोल अफगानिस्तान में सहूलियात के फुकदान के बायस इस वबा की शरह में संगीन हद तक इजाफा हो चुका है। आलमी इदारे सेहत की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के मुकाबले में मार्च के महीने में खसरा केसेस में इजाफा हुआ है। रवां माह खसरा के अलावा डायरिया और सांस के इन्फेक्शन के केसेस भी 6000 से तजावुज कर गए हैं, जबकि 34 अफराद जान की बाजी हार गए। तुलू न्यूज़ के मुताबिक वैक्सीन की अदम दस्तयाबी और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल दरामद न होने से खसरा के फैलाव का सबब हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान खसरा से 29 अफराद हलाक हो चुके हैं और साल 2024 में ही 7000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और 29 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में मलेरिया की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मलेरिया की रोकथाम के लिए रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए गए, जिस पर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हो सका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च में अफगानिस्तान की 16 हस्पतालों को माली इमदाद फराहम की ताकि अफगानिस्तान मुख्तलिफ वबाई अमराज पर काबू पा सके। और नाज़रीन, कनाडा में खालिसा तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। यौम खालिसा के हवाले से कनाडा में तकरीबात जारी हैं, जिससे तहरीक खालिस्तान में तेजी आ गई है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख बरादरी की तकरीबात में भरपूर शिरकत करते हुए सिखों को उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। कैनेडियन वज़ीर आज़म की खालसा तहरीक की तकरीबात में शिरकत इस बात का सबूत है कि कैनेडियन सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। इन तकरीबात से भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के कातिलों के खिलाफ सिखों के साथ खड़ी है। सिखों की तकरीबात के बाद मोदी सरकार के सिखों के खिलाफ दहशतगर्दाना इकदामात पर आलमी सतह पर भी मजम्मत की गई है। खालसा डे के हवाले से सिखों की बड़ी तादाद ने मोदी मुखालिफ नारेबाजी की और पोस्टर्स भी उठा रखे थे। तहरीक खालिस्तान के जोर पकड़ने पर मोदी सरकार शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि मोदी सरकार कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस इक़दाम पर तिलमिला उठी और उसके बाद कैनेडियन सफ़ीर को फौरी तौर पर जवाब तलबी के लिए बुला लिया। भारतीय हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैनेडियन वज़ीर आज़म अपनी सरजमीन पर तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान तहरीक के वाज़ेह मौक़िफ़ और भारतीय दफ्तर ख़ारजा में कैनेडियन सफ़ीर की जवाब तलबी दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने की जानिब इशारा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने ज़िला उधमपुर में मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला उधमपुर में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स ने ऑपरेशन को बसंतगढ़ और जिला के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला दिया। इन इलाकों में भारतीय फोर्सेज की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ये ऑपरेशन इतवार को इलाके में एक हमले के बाद शुरू किया गया, जिसमें नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स का एक रुकन मारा गया। विलेज डिफेंस गार्ड्स ने मोदी हुकूमत से आज़ादी पसंद इलाकों को निशाना बनाने के लिए मज़ीद हथियारों का मुतालबा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ कश्मीर के पुरअमन हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। उन्होंने कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद को गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने और इस हवाले से बैन अल-अक़वामी सतह पर आगाही पैदा करने की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब मकबूजा वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 3 कमसिन बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए हैं। 350 से ज़ायद खानदान बेघर हो चुके हैं, जबकि इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में भी कई इलाके ज़ेरे आब हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 5,56,548 तक पहुंच चुकी है, जबकि वापसी का ये सिलसिला मज़ीद जारी है। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 13,567 अफगान शहरियों में 5,412 मर्द, 3,458 खवातीन और 4,697 बच्चे अपने मुल्क लौट गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 632 गाड़ियों में 512 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। 19वीं सदी में मगरिब के बदतरीन सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ कामयाब तहरीक से दुनिया भर में मजदूरों के हालात कार बेहतर हुए हैं। वतन अजीज़ में मजदूरों की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुताद्दिद क़वानीन मौजूद हैं। क़वानीन पर अमल दरामद से ही मुल्क की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस हवाले से देखिए सोहेल जमाली की ये रिपोर्ट।
شدید گرمی، چلچلاتی دھوپ یا کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر مزدور اپنے بچوں اور اہل خانہ کا پیٹ پالنے اور انہیں بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے آج بھی اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کرتا ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری اور نجی ادارے میں کام کرنے والے ملازم ہوں یا دفاتر، ملوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے محنت کش، ملکی آئین انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں محنت کش طبقے نے، ٹریڈ یونین نے، مزدور تنظیموں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، روڈوں پہ نکلے ہیں۔ قربانیوں کے نتیجے میں مختلف ادوار میں مزدور قوانین بنائے گئے ہیں، بہتر کیے گئے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مزدوروں کے حقوق میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی، انہوں نے بہت قوانین بنائے، بہت ادارے قائم کیے۔ پاکستان میں 1950 کی دہائی سے 2018 تک 6 بڑی لیبر پالیسیوں کا مقصد مزدوروں کے لیے معاشی مساوات، مواقع کی فراہمی، انصاف اور جمہوری اقدار پر عمل درآمد تھا۔ بدقسمتی سے بہت سے غیر سرکاری شعبوں میں انجمن سازی کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہیں اوقات کار سے زیادہ کام اور کم از کم اجرت کے قانون پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات میں مزدور اور ملازم کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مزدوروں کو ان کے حقوق اور اجرت کا بروقت مناسب معاوضہ اور سماجی تحفظ ہی یوم مزدور کا اصل پیغام ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ملک میں بین الاقوامی معیار کے قوانین ہونے کے باوجود مزدوروں اور محنت کشوں کے استحصال کی واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ محض قوانین مسائل کا حل نہیں ہیں۔ جب تک ان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اجر مزدوروں کے حقوق سلب کرتا رہے گا۔ تفصیل ملک عمر سے جانتے ہیں۔ ملازمین اور محنت کشوں کے استحصال کا معاملہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بدقسمتی سے لیبر قوانین اور پالیسیوں کی موجودگی میں بھی آجر مزدور کے حقوق سلب کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ملک میں مزدور پالیسیاں نوآبادیاتی وراثت، فوجی آمریتوں اور جمہوری ادوار سے متاثر ہو کر مختلف مراحل سے گزری ہیں، جنہیں وقت کے ساتھ بین الاقوامی لیبر قوانین کے معیارات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت قوانین ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں اور بڑے اچھے قوانین ہیں یہاں پہ پاکستان میں لیبر کے لحاظ سے۔ اور ریسنٹلی جب 80th امینڈمنٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے لیبر قوانین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو ٹرانسپورٹیشنل ادارے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن۔ لیبر کلاس جو کہ ٹرانسپورٹیشن آرگنائزیشن میں ملازم نہیں ہیں تو ان کے لیے لیبر کورٹس ہیں، اور وہ لیبر کورٹس اپنے ڈومین میں یعنی اپنے صوبوں کے اندر کام کرتی ہے۔ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ قوانین ہونے کے باوجود محنت کشوں کا استحصال اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ عام آدمی نہ تو اس سے متعلق آگہی رکھتا ہے اور نہ ان قوانین کا نفاذ ان کی روح کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ملازمین کے حقوق کی وکالت کرنے والی مزدور تنظیموں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ عام چھوٹے مزدور ہیں جو فیکٹریز میں ہیں اور ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایسا شعور نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ اگر مجھے سیلری جو گورنمنٹ نے میری سیلری کی ہوئی ہے اس سے کم مل رہی ہے تو میں نے کہاں جانا ہے۔ تنظیمیں ہیں لیکن تنظیموں کو چلانے والے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کا مورل اتنا ہائی موریلٹی کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ امپلائر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے مزدور کے لیے کام کر سکیں۔ ملازمین اور محنت کشوں کے استحصال کے خاتمے کے لیے اولین سطح پر ضروری ہے کہ ملک میں مزدوروں کے حقوق کے احترام کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزدوروں کے عالمی دن پر روٹی، کپڑا اور مکان کے ویژن پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اس کے محنت کشوں کی فلاح و بہبود اور وقار سے منسلک ہے۔ پی 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 چیئرمین نے مزدوروں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں شکاگو کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے 1972 میں ملک کی پہلی لیبر پالیسی کے اجرا کے ذریعے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ تمام حقوق بحال کیے جو ایک آمر نے مزدوروں سے جابرانہ طور پر چھین لیے تھے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے سلسلے میں یونیورسٹی آف سرگودا کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نے تصویری اور ویڈیوگرافی نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ دیکھتے ہیں آصف حنیف کی یہ رپورٹ۔ نمائش کا افتتاح پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر میاں غلام یاسین نے کیا۔ نمائش میں 50 کے قریب طلبہ نے محنت کشوں کی زندگی، ان کی جاں فشانی، عزم و ہمت اور حوصلے کی عکاسی کی۔
नमाइश के जरिए तलबा ने ये पैगाम दिया कि तबाकाती तकसीम को खत्म करते हुए मजदूरों को माकूल मुआवजा समेत दीगर सहूलतों की फराहमी की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम यासीन ने तलबा के काम को सराहते हुए कहा कि तस्वीरी नुमाइश मजदूरों को खूबसूरत खराज तहसीन पेश करते हुए ये पैगाम देती है कि हलाल का एक लुकमा हराम के हजारों लुकमों से बेहतर है। बेसिकली इसको करने का मकसद ये था कि लेबर डे के अकॉर्डिंग जैसे कि मजदूर हैं वो जितना भी काम कर लें उनको उनका उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलता और जितना हो सके उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए। हमने इससे ये बताने की कोशिश की है कि हर लेबर और हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना एक मेयार होता है और उस मेयार पर उतरना भी एक स्किल होती है। हमने मज़दूरों को लेबर डे पे खराज तहसीन पेश की है जो कि इतनी मेहनत मजदूरी करके और जिनका आर्ट जो है वो नज़र ही नहीं आता। मेहनत से सब कुछ मुमकिन है और हमें मेहनत कशों को कदर व मंजिलत की निगाह से देखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एक आर्टिस्ट का काम यही होता है कि वो माशरे की बेहतर अंदाज में अक्कासी करे और बिलखसूस ऐसे मौज़ूआत को सामने लाए कि जिनको ज्यादा ज़ेरे बहस नहीं लाया जाता। कैमरामैन ज़हीर बाबर के साथ आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सरगोदा। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। वज़ारत ख़जाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ननकाना साहब के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। आवाम ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए अमली इक़दाम किए हैं। वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए नून लीग को हमने वोट दिया था, जिसके लिए इतना अरसा से नून लीग का इंतज़ार था। पेट्रोल 5 रुपये, ये भी बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं एक ज़मींदार हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जो हुई है वो 8 रुपये डीजल के कम होने की हुई है। इससे जो मेरी कंजम्पशन है फसलों की, जो महंगाई जैसे कहते हैं ना कंट्रोल करना, वो इनके बस की बात थी अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने शुरू कर दी है। जब ये एक सेशन में 8 रुपये कम हुआ, अगले सेशन में इंशाल्लाह इतना और हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाक चीन दोस्ती को मज़ीद फ़रोग़ देने की तरफ एक और कदम। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को चीनी ज़बान सिखाने के लिए चीनी हुकूमत और ओवरसीज़ चाइना एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से गिलगित में जदीद लैंग्वेज सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में जदीद डिजिटल लेबॉर्ट्री के जरिए तलबा को चीनी ज़बान सिखाई जा रही है। इस हवाले से गिलगित से शेर मोहम्मद की रिपोर्ट। सर सैयद अहमद खान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा को चीनी जबान सिखाई जा रही है। इस सेंटर का कयाम हुकूमत चीन और ओवरसीज चीनी एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से मार्च 2019 में अमल में लाया गया है। सेंटर में पाक चीन फ्रेंडशिप समी व वसरी क्लासरूम भी कायम किया गया है, जहां तलबा को जदीद खतूत पर जुबान सिखाई जा रही है। यहाँ एक डिजिटल लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है। जमात शशुम और हफ्तुम के 100 तलबा रोजाना क्लासरूम में चीनी जबान सीखते हैं। तो इस सेंटर का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के जो बच्चों को जो है बुनियादी जो है चाइना जबान सिखाई जाए, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन और करीबी दोस्त है। लैंग्वेज सिस्टम का इब्तिदा करने का मकसद ये था कि भाई आने वाले वक्तों में पाकिस्तान चीन दोस्ती को फ़रोग़ देना। ये चाइनीज़ ज़बान हमारे तालिब इल्म के लिए फ्यूचर में रोज़गार का बाइस बने। मुझे चाइनीज़ ज़बान पसंद है, इसलिए मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ। चीन लैंग्वेज सेंटर दोस्त मुल्क चीन और पाकिस्तान को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और ये लैंग्वेज सेंटर हुकूमत चीन की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए एक अजीम तोहफा है। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। रहीम यार खान के एक छोटे से गांव की हिंदू खातून तालीम से महरूम बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। सुगना माई ने न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया की, बल्कि अपनी मादरी ज़बान मारवाड़ी की बका के लिए स्कूल भी चला रही हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। रहीम खान के एक छोटे से गांव में अपनी मदद आप के तहत सुगना माई ने अपनी हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाने के लिए 6 साल कबल अपने ही घर में एक छोटा सा स्कूल कायम किया, जहां वो मकामी अफराद की माली मुआवनत से तुलबा और तालबात की तालीमी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। इनमें गरीब और ऐसे बच्चे शामिल हैं जो स्कूल नहीं जा सकते थे, वो भी इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। मारवाड़ी ज़बान में इसलिए पढ़ाती है, उर्दू यकदम इनकी समझ में नहीं आती, तो जैसे मैं इधर पहले एक बार उर्दू में पढ़ाती तो फिर मैं अपनी ज़बान में इनको पढ़ाती हूँ, जैसे एक बे,
तो वो बच्चे जो है आसानी से सीख जाते हैं। सहूलत यहाँ पे ये है कि हमारे बच्चे जो है घर में मारवाड़ी बोलते हैं और इधर भी मारवाड़ी में पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसका ज्यादा तालीम पे जो है ना असर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट सैलरीज भी पढ़ाई वहाँ, उर्दू इंग्लिश मैथ भी पढ़ाई वहाँ, बहुत अच्छी है। मिस सुगना देवी वो हमें बहुत अच्छी तालीम देती है। मेरा नाम गुलशन कुमार है, मारवाड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ी। स्कूल में मारवाड़ी जबान के साथ साथ दीगर उलूम भी पढ़ाए जा रहे हैं। सुगना माई का मकसद मुफ्त तालीम देने के साथ मादूम होती हुई मारवाड़ी जबान और सकाफत को जिंदा रखना भी है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। तौसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात EPI के 50 साल मुकम्मल होने पर आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात के सिलसिले में गिलगित में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत और ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। तफसील जानते हैं गिलगित से PTV के नुमाइंदे नज़ाकत अली की इस रिपोर्ट में। तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के 50 साल मुकम्मल होने पर आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत सुहेल अब्बास और ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत सुहेल अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे माशरे में बीमारियों की रोकथाम का रवाज नहीं है। जब बीमारी लाहक होती है तो इलाज की तरफ जाते हैं, इससे पहले एहतियाती तदाबीर पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। हिफाजती टीकाजात बीमारियों की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और ये जो आज EPI की तरफ से इंटरनेशनली ग्लोबली जो इनके 50 साल मुकम्मल होके जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, इस पे तमाम जो कोलैबोरेटिंग पार्टीज हैं आपकी यूनिसेफ है, WHO है और हेल्थ डिपार्टमेंट है और खुसूसन EPI है, और आप सबकी टीम की जो काविशें हैं, जो इवेंट आपने मुनक्किद किया है क्रॉस द GB, तो ये आपकी डेडिकेशन है। इस पर हम हुकूमत की तरफ से आप सबको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। EPI 1974 से इंसानों की जान बचाने के लिए हिफाजती टीकाजात लगा रहा है। महकमा सेहत के साथ आगा खान हेल्थ, AKRSP और दूसरे स्टेक होल्डर्स का किरदार भी लायक तहसीन है। जो कि हमारे जितने भी जो कि पार्टनर्स हैं, जिन्होंने 1974 से इंसानों को जिंदगी बचाने में जो कि अपना किरदार अदा किया, उसमें हमारे बहुत ही बड़े जो है कि फ्रॉम द बिगिनिंग जो स्टेक होल्डर है, WHO है, यूनिसेफ है, HSP है, AKRSP है। तकरीब के दौरान वुमेन पार्लियामेंटेरियंस दिलशाद बानू, सुरैया जमान और कुलसुम फरमान ने EPI के 50 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा और हवा में गुब्बारे भी छोड़े। नज़ाकत अली, गिलगित। और भी होंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, अलियोट में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हालिया बारिशों के बायस मरी के इलाके अलियोट में लैंडस्लाइडिंग और चट्टान सरकने के वाक़यात पेश आए थे। चट्टान सरकने की वजह से मुल्हिका आबादी में किसी बड़े जानी माली नुकसान का खदशा हो सकता था, जिसके बायस पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज रेस्क्यू 1122 और महकमा शहरात रोड क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मरी को हाला रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, जबकि रोड पर मौलिक चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी है। पाक फौज और रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि रोड की बहाली और मौलिक चट्टान को हटाने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, कराची में आज शदीद गर्मी रहेगी। महकमे मुस्बियात के मुताबिक दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। समंदरी हवाओं में कमी से गर्म और खुश्क लू का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। महकमे मुस्बियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 21% है। कराची समेत आज सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकले, पानी और मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल और बाजार की गैर मयारी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में तेज़ हवाएं झक्कड़ चलने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल।
नाज़रीन, मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।